Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue the lesson The Secret of Health, Success and Power, written by James Allen. Today we'll continue with its fourth part. If you would acquire overcoming power, you must cultivate poise and passivity. You must be able to stand alone. All power is associated with immovability. The mountain, the massive rock, the storm-tried oak all speak to us of power because of their combined solitary grandeur and defiant fixity, while the shifting sand, the yielding twig, and the waving reed speak to us of weakness because they are movable and non-resistant and are utterly useless when detached from their fellows. He is the man of power who, when all his fellows are swayed by some emotion or passion, remains calm and unmoved. Now its translation is: यदि तुम अन्य व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मस्तिष्क का संतुलन तथा शांति प्राप्त करनी चाहिए। तुम्हें अकेला खड़ा होने के योग्य होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की शक्ति दृढ़ता से संबंधित होती है। पर्वत, बड़ी बड़ी चट्टानें तथा बलूत का वृक्ष अपनी संचित शक्ति, सुंदर वैभव तथा स्थायी दृढ़ता के कारण अपनी शक्ति के उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जबकि हिलते हुए मिट्टी के ढेर, झुकी हुई शाखाएं तथा हिलते हुए सरकंडे अपनी कमज़ोरी को प्रकट करते हैं, क्योंकि वे सभी विचलित तथा अस्थिर होते हैं और पूर्ण रूप से निरर्थक सिद्ध होते हैं जब वे अपने साथियों से अलग कर दिए जाते हैं। वही व्यक्ति शक्ति का प्रतीक होता है जो हर संकट में अविचलित तथा शांत रहता है, जबकि उसके सारे साथी विपत्ति में अपनी तीव्र इच्छा तथा संवेगों से प्रभावित हो जाते हैं। He only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself. The hysterical, the fearful, the thoughtless, the frivolous, let such seek company, or they will fall for lack of support. But the calm, the fearless, the thoughtful, and grave, let such seek the solitude of the forest, the desert, and the mountain top, and more power will be added to their power, and they will more and more successfully stem the psychic currents and whirlpools which engulf mankind. केवल वही प्राणी आदेश देने तथा नियंत्रण करने में सक्षम होता है जो अपने स्वयं पर नियंत्रण करने में सफल हो चुका है, अर्थात उसका अपनी इच्छाओं तथा संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। संवेगपूर्ण भावनाओं, भयानक, विचारहीन तथा तुच्छ एवं निरर्थक व्यक्तियों का प्रयास ऐसे सक्षम व्यक्ति की संगति प्राप्त करने का होता है, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति सहयोग के अभाव में अवश्य ही असफल हो जाएंगे। लेकिन शांत, निर्भीक, विचारशील तथा गंभीर किस्म के प्राणी जंगल के एकांतवास में भी शरण का स्थान खोज लेते हैं। रेगिस्तानों तथा पर्वत शिखाओं पर भी
उनकी शक्तियों में वृद्धि होती रहेगी तथा वे अधिक से अधिक सफलतापूर्वक लहरों, जटिल कार्यों तथा मानसिक वातावरण में अपनी शक्ति में वृद्धि करते चले जाएंगे। वे इस प्रकार के प्राणी अधिक से अधिक बुरे प्रभावों पर नियंत्रण करने में अधिक सफल हो जाएंगे, जो बुरे प्रभाव तथा कष्ट मानव जाति को घेरे रहते हैं। Passion is not power, it is the abuse of power, the dispersion of power. Passion is like a furious storm which beats fiercely and wildly upon the embattled rock, whilst power is like the rock itself, which remains silent and unmoved through it all. संवेग शक्ति नहीं होती है। संवेग शक्ति का दुरुपयोग तथा बर्बाद करना होता है। संवेग एक भयानक तूफान के समान होता है जो दृढ़ चट्टान, कठोर व्यक्ति पर भयंकर रूप से तथा क्रूरता से प्रवाहित रहता है, जबकि शक्ति अपने आप में स्वयं में एक चट्टान होती है जो हर परिस्थिति में शांत तथा अचल रहती है। If you have not this power, you may acquire it by practice, and the beginning of power is likewise the beginning of wisdom. You must commence by overcoming those purposeless trivialities to which you have hitherto been a willing victim. Boisterous and uncontrolled laughter, slender and idle talk, and joking merely to raise a laugh, all these things must be put on one side as so much waste of valuable energy. यदि आपके अंदर इस शक्ति का अभाव है तो आप उसे अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं तथा शक्ति का आरंभ भी बुद्धिमत्ता का आरंभ होता है। आपको उद्देश्यहीन कार्यों पर विजय प्राप्त करके कार्य का आरंभ करना होगा जिनका अब तक आप इच्छित शिकार रहे हैं। अशांत तथा अनियंत्रित हंसी, अपयश की बातें तथा व्यर्थ के वार्तालाप तथा मनोरंजन के लिए व्यंग करना, ये सभी कार्य एक ओर रख देने चाहिए, अर्थात छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ये सभी कार्य बहुमूल्य शक्ति को बर्बाद करते हैं। Above all, be of single aim, have a legitimate and useful purpose, and devote yourself unreservedly to it. Let nothing draw you aside. Remember that the double-minded man is unstable in all his ways. Be eager to learn, but slow to beg. Have a thorough understanding of your work, and let it be your own. And as you proceed, ever following in the inward guide, the infallible voice, you will pass on from victory to victory and will rise step by step to higher resting places, and your ever broadening outlook will gradually reveal to you the essential beauty and purpose of life. Self-purified health will be yours, faith-protected success will be yours, self-governed power will be yours, and all that you do will prosper, for ceasing to be a
disjointed unit. Self-enslaved, you will be in harmony with the great law, working no longer against, but with the universal life, the eternal good. And what health you gain, it will remain with you. What success you achieve will be beyond all human commutation and will never pass away. And what influence and power you yield will continue to increase throughout the ages, for it will be a part of that unchangeable principle which supports the universe. सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आप एक उद्देश्य वाले बने। अपने जीवन में उचित तथा लाभदायक उद्देश्य गठित करें तथा अपने स्वयं को इस कार्य में पूर्ण साहस के साथ व्यस्त रखें। कोई भी कार्य आपको इस उद्देश्य से विमुख न कर दे। सदैव स्मरण रखें, दोहरे कार्य करने वाला व्यक्ति अपने सभी कार्यों में असफल होता है। सदैव सीखने के लिए इच्छुक बने, परंतु मांगने में धीमे रहें। अपने कार्य के बारे में पूर्ण समझदारी रखें तथा वह समझदारी आपकी अपनी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर हों, सदैव अपने अंतःकरण की आवाज़ तथा निर्देश का पालन करें। इस प्रकार आप एक सफलता से दूसरी सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे और धीरे धीरे प्रतिष्ठा के श्रेष्ठ स्थान की ओर आगे बढ़ेंगे तथा आपका विस्तृत दृष्टिकोण आपको धीरे धीरे आवश्यक सौंदर्य यानी कार्य का सौंदर्य तथा जीवन के लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। अच्छे तथा पवित्र विचारों वाला स्वास्थ्य आपका होगा। विश्वास की रक्षा करने वाली सफलता आपकी अपनी होगी। आत्मनियंत्रण की शक्ति पर आपका अधिकार होगा तथा जो कुछ आप करेंगे उससे आप फलेंगे फूलेंगे। यदि आप अव्यवस्थित होने तथा इच्छाओं के दास होने से अपने स्वयं को रोक लेंगे तो आप महान नियम यानी ईश्वर का नियम जो अटल सत्य है के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस प्रकार आप समस्त विश्व तथा अनंत अच्छाई के लिए कार्य करेंगे। इस प्रकार कार्य करके आप जो स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे वह सदैव आपके साथ रहेगा, अर्थात आपका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहेगा। जो भी सफलता आप प्राप्त करेंगे, अन्य व्यक्तियों के द्वारा उस सफलता की कल्पना करना भी कठिन होगा तथा इस प्रकार की सफलता कभी आपसे दूर नहीं होगी। आप निरंतर सफल होते रहेंगे। इस प्रकार जो भी प्रभाव तथा शक्ति आप प्राप्त करेंगे उसमें युगांतर तक निरंतर वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति एक स्थायी सिद्धांत का अंग होगी जो समस्त ब्रह्मांड यानी विश्व की सहायता करता है। This then is the secret of health, a pure heart and a well-ordered mind. This is the secret of success, an unfaltering faith and a wisely directed purpose, and to rein in with unfaltering will the dark steed of desire. This is the secret of power. संक्षेप में, एक पवित्र हृदय तथा सुव्यवस्थित मस्तिष्क
स्वास्थ्य का रहस्य होता है। अडिग विश्वास तथा बुद्धिमत्ता से निर्देशित किया गया लक्ष्य सफलता का रहस्य है तथा अडिग उत्साह एवं दृढ़ इच्छा ही शक्ति का रहस्य है। So children, today I have completed this lesson by explaining you the details of every paragraph and translating it in Hindi. Now, in the next lecture, I will come with its reference, context and explanation and question answers. So, for today, this much only. Thank you, children.